Kindly turn with me to Psalm 37. मेरे साथ आप मज़ामिर की किताब चैप्टर 37 देखें। Psalm 37. First 7 verses we shall read it responsibly. पहली 7 आयतें हम पढ़ेंगे, हम सब बारी बारी से पढ़ेंगे। Fret not thyself because of evil doers, neither be thou envious against the workers of iniquity. क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जे की तरह मुरझा जाएंगे। Trust in the Lord and do good, and so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. यहोवा में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। Verse 7. Rest in the Lord and wait patiently for him. Fret not thyself because of him that who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Shall we pray? दुआ करेंगे। Loving Father, most gracious and merciful God, thank you and praise you for the blessed time around thy feet, worshiping thee. Thank you for the provision made in your house to come around the table. Before we come around the table with all fear and reverence, we approach the word, minister the word unto us, so that we may correct ourselves, then we may take part in the table worthily. I thank you for the portion of the scriptures just now read. May the Holy Spirit help us in expounding the word. Prepare every one of us through the word so that we may take part in the table worthily. Pray with thanksgiving the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमीन। This psalm is a psalm of David. ये मजमूर जो है ये दावीद का मजमूर है। Yeah, David as a young boy and he understood the love of God. दावीद एक नौजवान इंसान था। जब वो नौजवान था तो खुदा की मोहब्बत को उसने समझ लिया। Yeah, in Psalm 32 verse 5 he says, I acknowledge my sin unto thee, and many iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgression unto the Lord. Thou forgavest the iniquity of my sin. इसलिए 32वां बाब और 5वीं आयत में कहता है, मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छिपाया। मैंने कहा मैं यहोवा के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को मुआफ किया। He always depended on God in all situations. वो हमेशा हर हाल में खुदा पर तकिया करता था। Yeah, when as a young boy he went against Goliath, who was challenging the children of Israel. जब वो कमसिन ही था तब उसने गोलियात के सामने गया था जो इस्राएलियों को ललकार रहा था। Yeah, no one was there to fight against Goliath. उस वक्त गोलियात से लड़ने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। There were great mighty men in the army of Saul, but none encountered Goliath. साउल के लश्कर में बहुत सारे लोग थे, सूरमा थे, लेकिन उनमें से भी कोई आगे नहीं आ रहा था। But David, he took courage and he went in the name of the Lord and killed Goliath. लेकिन दावीद ने बहुत दिलेरी से खुदावंद यहोवा के नाम से आगे बढ़ा और उस गोलियात को उसने मार गिराया। He went against the great giant and in the name of the Lord. उसने उस जैंट गोलियात के खिलाफ यहोवा के नाम लेकर गया था। So by seeing David, Goliath said, do you think that you come me like I am a dog? You with staves, he was asking. और जब दावीद वहां गया था तो गोलियात उससे पूछ रहा था, तू इस तरह लकड़ी लेके मेरे सामने क्यों आता है? क्या मैं कुत्ता हूँ? See, 1 Samuel chapter 17 verse 43. देखें पहला शमूएल की किताब 17 की 43. And the Philistines said unto David, I am a dog that cometh unto me with his staves, and the Philistine cursed David by his God. फलिस्तीनी ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और उस फलिस्ती ने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद पर लानत की। But David went in the name of the Lord.
यहाँ पे हम देखते हैं कि दावीद ने यहोवा का नाम लेकर उसके सामने गया था। Verse 45. और 45वां आयत, Then said David unto the Philistine, and comest thou me with the sword and with the spear, with the shield? But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. दावीद ने उस फिलिस्ती से कहा, तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं लश्करों के यहोवा के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूं। So David depended on God. God gave him victory over his enemy Philistines. तो इस तरह जब दावीद यहोवा का नाम लेकर आगे बढ़ा, तो खुदा ने अपने दुश्मन फिलिस्ती गोलियात पर उसे जीत दिलाई। The great giant was challenging children of God for 40 days. और उन दिनों में क्या होता था, 40 दिन तक वो गोलियात, वो देवकामत इंसान जो था, वो आकर इसराइलियों को ललकार रहा था। So David depended on God, went against the giant and killed him with pebble. और इस तरह दावीद आगे बढ़ा और उस देवकामत इंसान गोलियात को पत्थरों से मार गिराया। Yeah, what a wonderful God gave victory to David through his dependence God. देखें, आप गौर फरमाएं कि जब दावीद ने खुदा पर इन्हिसार किया, मुनहसिर रहा, तो खुदा ने दावीद को कितनी बड़ी जीत दिलाई। After that he underwent a difficult situation. His father-in-law Saul wanted to eliminate him several occasions. और उसके बाद वो बहुत सारी मुसीबतों में से गुजरते गया, क्योंकि उसका खुद का ससुर ही उसे बहुत सारी बार उसे मार गिराना चाहा। But David, in all situation, he depended on God. लेकिन उन सारी हालतों में दावीद हमेशा खुदा पर भरोसा रखता था। God gave victory to him. और खुदा हमेशा उसे जीत ही दिलाते आया। Yeah, Saul in after some time he died in the hands of the Philistines. और कुछ वक्त के बाद साउल को क्या होता है, फिलिस्ती के हाथों में वो भी मर जाता है। He and his sons died. और वो और उसके बेटे मर जाते हैं। But God did not leave David, and David he ascended to the throne. लेकिन दावीद को खुदा ने नहीं छोड़ा, और दावीद और उसकी नस्ल जो है वो तख्त नशीन हो गए। Yeah, God made him the king. खुदा ने दावीद को ताजपोश किया। What a wonderful God. देखें, वो कितना ही अजीम खुदा है। His life was not so smooth, full of difficulties and pain. उसकी जिंदगी बहुत आसान से नहीं थी, बहुत तकलीफें, मुसीबतें और दुख और दर्द से गुजरी थी। In all situations he trusted in God. लेकिन हर वक्त में, हर पल में दावीद ने यहोवा पर तकिया किया था। Yeah, one such Psalm 37, and he composed verse 1. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. और उस तरीके से उसने बहुत सारे मज़ामिर लिखे, और उनमें से एक मजमूर है चैप्टर 37, मज़ामिर की किताब चैप्टर 37 आयत नंबर 1। तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर। Yeah, don't worry about evil doers. बदकिरदारों पर तू बेजार ना होना। For soon they will be cut down like grass, will wither as a green herb. क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जे की तरह मुरझा जाएंगे। But you trust in God. लेकिन तू खुदा पर भरोसा रख। That is his testimony. यही है दावीद की गवाही। He trusted in God. He got victory in his life. उसने खुदा पर हमेशा एतिकाद रखा, भरोसा रखा, और अपनी जिंदगी में हमेशा जीत पाते गया। As a young boy, he trusted in God. When he became an elderly man, he trusted in God. Throughout his life, he trusted in God. वो नौजवान होते वक्त वो खुदा पर यकीन रखा, और बड़े बुजुर्ग होने के बाद भी उसने खुदा पर यकीन रखा। अपनी जिंदगी तमाम उसने खुदा पर यकीन रखा। So many times we trust in things, perishable things of this earth, the material things and the riches we have. We trust in that. This will help me in time of need. हमारी जिंदगी में हम क्या करते हैं, बहुत सारी बार हमारे माल और असबाब जो होते हैं उन पर हम तकिया करते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं कि जरूरत के वक्त ये
मालो असबाब हमारे काम आएंगे। Yeah, though God gives, blesses the things of this earth, but we should not put our trust in that what we have. खुदा तो हमें इस जमीन पे बहुत सारी चीजें वो अता फरमाता है, बहुत सारी चीजें बख्शता है, लेकिन हमारा भरोसा और इतिकाद उन पर नहीं होना चाहिए। They are not our strength. वो चीजें जो हैं वो हमारी ताकत नहीं हो That सकती, will perish one day. क्योंकि वो चीजें एक दिन फना हो जाएंगी। But our Lord is our everlasting strength. लेकिन हमारा खुदा जो है वो हमारा अबदी जोर है। Yeah, so Isaiah so 26 verse 4. एशिया की किताब चैप्टर 26 की आयत नंबर 4। Trust in the Lord forever, for He is the Lord Jehovah, He is the everlasting strength. लिखा हुआ है, अब तक यहोवा पर एतमाद रखो, क्योंकि यहोवा खुदावन अबदी चट्टान है। Yeah, so in our spiritual life, we must put our trust in God throughout our lives. तो हमारी रूहानी जिंदगी में भी हमें हमेशा हमारे खुदा पर ही एतमाद रखना है। Yeah, the day when we trusted in Him, He will bless us and He will take complete charge of us. जिस दिन हम खुदावंद यहोवा पर एतकाद रखेंगे, एतमाद रखेंगे, उस दिन वो हमें बरकत बख्शेगा। Yeah, we should not trust in men. इंसानों में हमें भरोसा रखना मना है। Yeah, so Jeremiah chapter 17 verse 5. यिर्मयाह की किताब 17 की 5। Thus said the Lord God, cursed be a man that trusteth in man, and maketh his flesh his arm, whose heart departed from the Lord. यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा यूं फरमाता है, मालूम है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कुल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है और जिसका दिल यहोवा से बरगश्ता हो जाता है। So a man who trusteth in men is a cursed person. तो वो इंसान जो दूसरे इंसान में एतमाद रखता है वो मालूम है। Yeah, but one who trusteth in God is a blessed man. लेकिन जो यहोवा पर एतमाद रखता है वो मुबारक इंसान है। He will be like a tree planted by the waters and spreadeth out the roots by the river. वो किस तरह रहेगा? वो उस दरख्त की मानिंद रहेगा जो एक दरिया के पास नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल लाता है। Yeah, Jeremiah 17 verses 7 and 8. यिर्मयाह की किताब 17 8वीं आयत। 17 7 and 8. 7 और 8वीं आयतें। Please read. यिर्मयाह की किताब 17 की 7 और 8वीं आयतें। मुबारक है वो आदमी जो यहोवा पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीदगाह यहोवा है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो और फल लाने से बाज ना रहे। Yeah, when we trust in God, He will bless us. जब हम खुदा पर एतमाद रखेंगे, तवक्कुल करेंगे, तो वो हमें बरकत बख्शेगा। Yeah, God will never leave His people. खुदा हम अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है। Yeah, He is mindful of His children. खुदा हमेशा अपने लोगों का फिक्र रखता है। Yeah, Psalm 125 मज़ामिर की किताब 125 and verse 1. और आयत नंबर 1। They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. जो यहोवा पर तवक्कुल करते हैं वो कोहे सिय्योन की मानिंद हैं, जो अटल बल्कि हमेशा कायम हैं। Yeah, so when we trust in God, जब हम यहोवा पर तवक्कुल करेंगे, yeah, we will not be moved. हम अटल रहेंगे। Yeah, we will be like Mount Zion. हम सिय्योन कोहे सिय्योन की मानिंद रहेंगे। Yeah, so that's what David, he trusted in God throughout his life and he became a prosperous person. इस तरीके से दावीद अपने खुदा पर हमेशा एतमाद रखता था, भरोसा रखता था, और वो बार बार हो गया। Yeah, whom do you trust? आजकल आप किस पर एतकाद या भरोसा रखते हैं? Do you trust in God? क्या आप खुदा पर एतकाद रखते हैं? Or you trust in your strength or others or anything? या अपनी ताकत में, अपने जोर पे, या लोगों पर भरोसा रखते हैं? Yeah, so we trust on others, trust on things of this earth, and we are the cursed people. अगर हम दूसरों पर एतकाद रखते हैं, दूसरों पर हमारा भरोसा है, या अपने आप पर हमारा भरोसा है, या चीजों पर हमारा भरोसा है, तो हम मालूम लोग हो जाते हैं। We must trust in our God. हमें
सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा पर ही भरोसा रखना है। Secondly, he says in Psalm 37 verse 4, दूसरी बात Psalm 37 verse 4 में, delight thyself also in the Lord, he shall give thee the desires of thine heart. यहोवा में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। Yeah, we must delight in our Lord. हमें क्या करना है? हमारे खुदा में मसरूर रहना है। Yeah, we should not get delight in the things of this earth. इस जमीनी चीजें जो होती हैं इनसे हमारी खुशी नहीं रहनी चाहिए। Yeah, God has forgiven our sins and he has given us joy unspeakable and full of glory. खुदा ने हमारे सारे गुनाहों को मुआफ किया और बयान से बाहर और जलाल खुदा ने हमें दिया है। Yeah, so we think of God and godly things, then our joy will multiply. इस तरीके से जब हम खुदा के बारे में सोचेंगे और आसमानी चीजों को ढूंढेंगे तो हमारी खुशी और बढ़ती जाएगी। Yeah, we must read God's word regularly, get up early in the morning, praise him and pray, and thus we go closer to him. और इस तरीके से हमें हर सुबह उठना है, गाने गाना है, इबादत करनी है और खुदा का कलाम पढ़ना है, तब हम खुदा के करीब जाते जाएंगे। Yeah, thus our delight, our joy will increase day by day. इस तरह हमारी खुशी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। And not by force, but delight in him, or reading the word with joy, going to house of God joyfully and giving to the Lord joyfully. Anything to the Lord, it must be delightfully. जबरदस्ती से नहीं बल्कि खुशी से खुदा के करीब आना है, खुदा के लिए जीना है, खुदा के घर में जाना है और खुशी से सारी चीजें करनी है। Yeah, joyfully tell about the Lord to others. खुशी से दूसरों के पास जाकर खुदावंद यीशु के बारे में बताना। Joyfully praying for others. खुशी से दूसरों के वास्ते दुआ मांगना। Yeah, I delight in the Lord. मैं खुदावंद में मसरूर हूँ Because Lord, he loved me, gave himself for me. क्योंकि मेरे खुदावंद यीशु ने मुझसे मोहब्बत रखते हुए अपने सब कुछ मेरे वास्ते दे दी। Yeah, he is going to come again. और वो फिर मेरे वास्ते वापस आने वाले हैं। Yeah, till he comes in this world, he takes care of me. जब तक वो आते हैं तब तक इस जमीन पर मेरा फिक्र वो रखते हैं। Yeah, I am delighted in him. इसीलिए मैं उसमें मेरे खुदावंद में मसरूर हूँ। Yeah, Paul writes to the Philippians, I say, rejoice in the Lord. Always I say, and you rejoice. इसीलिए फिलिपियों की किताब में हम पढ़ते हैं, खुदा का बंदा लिखता है कि खुदावंद में हमेशा खुश रहो, मसरूर रहो। Yeah, that epistle is one of the prison epistles. There, in pain and sorrow in prison, he motivates others. Rejoice in the Lord. वो तो जब वो कैद खाने में कैद थे उस वक्त पौलुस रसूल लिखते हैं, दूसरों को भी वो दिलासा देते हुए लिखते हैं कि खुदावंद में मसरूर रहो। Yeah, in pain, and he was rejoicing, asking others to rejoice. दर्द में होते हुए वो खुद मसरूर रहता है और दूसरों को भी खुदावंद में मसरूर रहने के लिए कहता है। Yeah, Philippians chapter 4 verse 4. फिलिपियों की किताब 4:4। Yeah, rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. 4:4 खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। Yeah, rejoice in the Lord. खुदावंद में खुश रहो। Let me delight in the Lord. खुदावंद में मुझे मसरूर रहने दें। Yeah, joyfully doing things of God. हमेशा खुशी से खुदावंद के काम में मैं मगन रहूंगा। Yeah, that's very important. ये बहुत बड़ी बात है। In the Christian life, we face many challenges, difficulties, and even sometimes persecution also. यीशुई जिंदगी में हम तकलीफें झेलते हैं, मुसीबतें उठाते हैं और कभी कभार प्रोसिक्यूशन भी झेलते हैं। Yeah, in all these things, we must delight in the Lord. लेकिन ये सारी चीजें जब होती हैं, इन सबों में भी हमें खुदावंद में मसरूर रहना है। I am not called for this world. I am called for the eternal world and the kingdom to be with the Lord. इस दुनिया के वास्ते मैं बुलाया नहीं गया हूं, बल्कि अबदी बादशाहत के वास्ते, आसमानी खुदावंद की उस सल्तनत के वास्ते मैं बुलाया गया हूं। Yeah, that's what we have to delight in Him. इस तरीके से उसमें हमें मसरूर रहना है। Are you delightful in the Lord? क्या आप भी खुदावंद में मसरूर हैं? What is hindering you not to be delighted? खुदावंद में मसरूर रहने से आपको क्या पीछे खींचता है? Anything that which is hindering in your spiritual life, robbing your peace and joy, ask the Lord to forgive, then take upon the table. अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी खुदावंद में मसरूर रहने से आपको नीचे खींचता है तो खुदावंद से पूछना कि खुदावंद उसे आपकी जिंदगी से हटाएं ताकि आप हमेशा खुदावंद में मसरूर रहें। If you delight in the Lord, अगर आप खुदावंद में मसरूर रहेंगे and He shall bring it to pass.
तो वो क्या करेगा, वो आपके दिल की आरज़ू जो होती हैं उन्हें पूरा करेगा। Yeah, verse 4. चौथी आयत, He shall give the desires of the heart. और वो तेरी दिल की मुरादें पूरी करेगा। The delights is the desires of the heart he gives. तो जब हम मसरूर रहेंगे तो खुदा हमारे दिलों की मुरादें पूरी करेगा। Yeah. Then thirdly, तो तीसरी बात, verse 5. 5वीं आयत, Commit thy ways unto the Lord, trust also in him, he shall bring to pass. अपनी राह खुदावंद यहोवा पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। Yeah. Commit our ways unto the Lord. हमारी राहें खुदावंद के हाथों में सौंपना है। Don't do anything of your own. अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी खुदी के मुताबिक कुछ मत करना। Anything you must depend on God. जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो, सब कुछ खुदावंद के हाथों में सौंपना। Before you do anything, you must pray to God. कुछ भी करने से पहले हमेशा खुदावंद से दुआ मांगना। If you want to buy anything, pray to God. अगर कुछ खरीदना चाहते हैं तो खुदावंद से दुआ मांगना। Yeah, if you want to sell anything, pray to God. अगर कुछ बेचना चाहते हैं तो भी खुदावंद से दुआ मांगना। Yeah, don't do anything of your own, but commit your ways unto the Lord. कुछ भी अपने आप मत करना, लेकिन आपकी हर राह को खुदावंद के हाथों के सुपुर्द करना। That means we must be God dependent people. इसका मतलब ये होता है कि हमेशा हमें खुदा पर मुनहसिर होने वाले, तकिया करने वाले लोग बनना है। Because we depend on God. क्योंकि हम खुदा पर ही तकिया करने वाले हैं। He is our God. He sent his son to save us and we became his the children of God. वही हमारा खुदा है, उसने अपने इकलौते बेटे को हमें बचाने के लिए भेजा है और हमें अपना बना लिया, वो हमारा खुदा बन गया। So, as children of God, we must go to him and tell our need, depend on him, seek his guidance, even small matters. इसीलिए खुदा के बच्चे होने के नाते हमेशा हमें खुदा के पास आना है। छोटी सी बात क्यों ना हो, हमेशा हर बात को लेकर खुदा की मर्जी पूरी करनी है। Yeah, don't tell anything, I will do that, I will do this. All time you tell, God, if it is the will of God, I will do this. कभी ये नहीं कहना कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हमेशा बल्कि ये कहना कि अगर खुदावंद की मर्जी है तो मैं ये यकीनन करूंगा। Oh, that's very important. ये बहुत ही अहम बात है। Because with our foolishness we do certain things and which brings damage to us and also it causes some loss to us. क्योंकि हम अगर अपनी मर्जी के मुताबिक चलेंगे तो उससे हमें नुकसान हो सकता है और नुकसान वो हम कभी भर भी नहीं पाएंगे। Yeah, that's what we must commit our ways unto the Lord. इसीलिए हमको क्या करना है, अपनी राहें यहोवा पर छोड़ देने हैं। Yeah, he is mindful of us. वो हमारा फिक्र करता है। What is our need and what we have to do, how we have to do, everything he plans. हमारी हाजत क्या है, जरूरत क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें को क्या देना है, सब कुछ वो तय करते रहता है। Yeah, one incident I tell from the life of Brother Bhaksing. भाई भक्त सिंह की जिंदगी से एक वाकया मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। He is a man of God. वो मर्दे खुदा है। Ever since he was saved and he was depending on God for every smallest thing also. जब से वो नजात पाया था उस वक्त से लेकर हर छोटी छोटी चीज के लिए भी खुदा पर वो तकिया करता था। Yeah, one day he found his shoes, there was the lace, he wanted to change the shoe lace. एक बार क्या हुआ था, उनके जूतों का तस्मा जो था, शू लेस जो था, वो खराब हो गया था, उसे खरीदना चाहा था। So God knows everything. So lace has gone. खुदा को तो सब कुछ पता है ना कि जूतों का तस्मा खराब है। He did not pray. He went and purchased one pair of shoe lace. उसने क्या किया था, दुआ नहीं मांगा था बल्कि जाके सीधा शू लेस खरीद लिया था। God asked, why did you buy? God asked, why did you buy? खुदा ने पूछा था उनसे कि आपने क्यों खरीदा। Yeah, the same day one man brought a brand new shoes. क्योंकि उसी दिन क्या हुआ था, एक आदमी आया था और 8-9 बहुत नए जूते शूज शूज उनको गिफ्ट दिया था। Yeah. See, he was buying shoelace, but God is thinking of giving shoes. देखें उन्होंने क्या किया था, शू लेस खरीदना चाहा बल्कि खुदा ने उनको शूज, नए शूज देना चाहा। This is the mind of God. ये है खुदा का दिमाग या दिल। He wants to give the best.
वो चाहता है कि बेहतरीन चीजें हमें दें। Yeah, when we commit our ways, we will receive the best. जब हम उनकी राहों में आते हैं तो बेहतरीन चीजें हम पाते हैं। If we do things of our own, we will get less or even loss also. अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी राहों में चल के काम करेंगे तो हमें थोड़ा ही मिलेगा या नुकसान भरना पड़ेगा। Yeah, so that's what to learn to commit your ways unto the Lord. इसीलिए अपनी राहें खुदावंद के सुपुर्द करना सीखना अच्छा है। Everything we must commit. हर चीज हर बात को सब कुछ उसके हाथों के सुपुर्द करना है। Yeah, in Proverbs chapter 16 तमसी अमसाल की किताब बाब नंबर 16 and verse 3. और आयत नंबर 3। Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. अपने सब काम यहोवा पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। Yeah. Do you commit your ways unto the Lord? क्या आप अपने सारे काम यहोवा के सुपुर्द करते हैं? Those who do things as they like, they cannot take part in the Lord's table. अपनी जिंदगी में सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक करने वाले यहाँ आकर खुदावंद की इस मेज में हाथ नहीं डाल सकते। Thinking of our own, doing things as we like, living in this world, we cannot take part in the Lord's अपनी table. मर्जी के मुताबिक जीते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक इस दुनिया में सब कुछ करते हुए यहाँ आकर यहाँ हाथ नहीं डाल सकते। We must tell Lord, forgive me, help me to commit my life fully unto thee as a holy vessel. खुदावंद से कहना है, ऐ खुदावंद मुझे माफ कर, मुझे अपनी जिंदगी अपनी तमाम जिंदगी आपकी सुपुर्द करने का रहम मुझे अता फरमा करके उनसे मांगना है। We cannot do anything with our body. अपने जिस्म से भी हम अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकते। Oh, who dwells in us? हमारे अंदर कौन बसता है? The Spirit of the Lord dwells in us. खुदा का पाक रूह हमारे अंदर बसता है। We became the temple of God. हम खुदा का हैकल बन चुके हैं। So we belongs to God. इसीलिए हम खुदा के लोग बन चुके हैं। Commit our body unto Him. इसीलिए हमारे जिस्म को भी खुदा के सुपुर्द करना। Nothing of our own, everything belongs to Him. हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा खुद का कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसका हो गया। Then we find blessing comes in our life. जब हम ऐसा ही जिएंगे तब हमारी जिंदगियों में बरकत आना पाएंगे। That's what Psalm 34 verse 5, commit the way unto the Lord, trust also in Him, He shall bring it to pass. इसीलिए मज़ामिर की किताब 34:5 में पढ़ते हैं 37 sorry. Psalm 37 verse 5. 37:5 में हम पढ़ते हैं, अपनी राह यहोवा पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। Then fourthly, और उसके बाद चौथी बात, verse 7. 7वीं आयत, Rest in the Lord, wait patiently for Him, fret not thyself because of him who prospereth in his way, because the man who bringeth wicked devices to pass. यहोवा में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख, उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। Rest in the Lord. यहोवा में आस रख। Wait patiently. उसके लिए सब्र से इंतजार कर। It's a very important thing. ये बहुत अच्छी बात है। We should not be restless people on this earth. इस जमीन पर हमें भागदौड़ करने वाले लोग नहीं बनना चाहिए। Be calm, wait patiently. हमें सब्र से रहने वाले, इत्मीनान से रहने वाले लोग बनकर रहना चाहिए। All things won't be materialized in our lives immediately in our ways. God has a time and He will do it in His own way. खुदा का एक वक्त है, उसी वक्त में वो सब कुछ हमारे लिए करेगा। जब हम चाहेंगे, हमारी चाहत के मुताबिक उसी वक्त सब चीजें हमारे सामने नहीं आएंगी। If we do anything impatiently and we incur loss and we lose even our joy. अगर हम बेसब्री से कुछ चीजें कर देंगे तो हम नुकसान उठाएंगे और हमारी खुशी चली जाएगी। In verse 34 और आयत नंबर 34 में, and wait on the Lord and keep His way, and He shall exalt thee to inherit the land, and the wicked are cut off, and thou shalt see it. यहोवा की आस रख और उसी की राह पर चलता रह और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। जब शरीर काट डाले जाएंगे
करेंगे तो तू देखेगा। Yeah. So examine our life. तो हम हमारी जिंदगियां जरा परखें, Or we rest in Him and wait patiently for Him. क्या हम उसमें आस रखते हैं और सब्र से उसके मुंतजिर रहते हैं? Those who wait upon the Lord, they renew their strength. जो भी खुदावंद पर आस रखते हैं वो लोग अपनी ताकत को बढ़ाते जाएंगे। Yeah, David, during his life, difficult days, he waited patiently for Lord's time to come. दावीद ने भी अपनी जिंदगी के बहुत मुश्किल दिनों में उसने क्या किया था? खुदावंद पर आस रखते हुए वो सब्र से इंतजार करते रहा। Two opportunities were given to him and to kill Saul, but he did not do it. साउल का कत्ल करने के लिए उसको 2 मौके मिले थे, लेकिन उसने उन मौकों में भी साउल का कत्ल नहीं किया। Saul wanted to kill David, but David never wanted to kill him because he was the Lord's anointed. साउल ने हमेशा दावीद का कत्ल करना चाहा, लेकिन दावीद को मौका मिलने के बावजूद भी उसने कत्ल नहीं करना चाहा साउल का, क्योंकि वो जानता था कि साउल खुदा का ममसू है। David waited patiently. दावीद सब्र से मुंतजिर रहा। Days of difficulties, days of pain, days of problems, he endured. मुश्किल के दिन, तकलीफ के दिन हमेशा वो सब्र से झेलते रहा। Yeah, Isaiah chapter 40 verse 31. इसीलिए यशायाह की किताब चैप्टर 40 और आयत नंबर 31 में हम पढ़ते हैं, They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings as eagles, shall run and not be weary, and shall walk and not faint. यशायाह की किताब 40 की 31, लेकिन यहोवा का इंतजार करने वाले असरे नाव जोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। Yeah, so we must wait on the Lord and renew our strength. तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमारे खुदा पर इन्हिसार करना है और हमारी ताकत को बढ़ाना है। Rest in the Lord, wait patiently, यहोवा पर आस रख और इंतजार कर, and God will do His great things in our lives. और खुदा क्या करेगा? अपने अजीम काम जो होते हैं हमारी जिंदगी में वो करने लगेगा। Yeah, we must be very careful about our spiritual life. हमारी रूहानी जिंदगी को लेकर हमें बहुत एहतियात से जीना है। Yeah, David, he fell in sin. दावीद ने क्या किया था? गुनाह में गिर गया। Yeah, because of the sin, and he lost several things in his life. तो दावीद ने गुनाह की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें उसने खो बैठी। Yeah, God was not happy when David committed sin. दावीद जब गुनाह में गिर गया तो खुदा बिल्कुल खुश नहीं था। Yeah, God sent Nathan the prophet to tell about his sin. और तब दावीद के सामने खुदा ने नातान नबी को भेजा ताकि वो जाकर दावीद से कहे कि वो ही गुनहगार है। Yeah, Nathan went and told the little lamb story to him. और नातान गया और दावीद के सामने उस छोटे मेमने का दास्तान बताया। Then David was pricked in his heart. तब दावीद को क्या हुआ था? उसके दिल में वो उसको चुभ लिया। He understood that what sin he committed is against God. तब उसको पता चला कि जो गुनाह उसने किया है वो खुदा के खिलाफ है। He cried and cried. और वो बहुत जार जार रोया। He lost the joy of the Lord. और खुदा की जो नजात की खुशी है वो खो बैठा। You know, when we do sin, हमें भी ऐसा ही जब गुनाह करते हैं and we will lose our peace. हमारी खुशी जो है वो हमसे दूर हो जाती है। Sin means even tell lie, even we cheat others, we do harm to others. That will bring grief to us. गुनाह का मतलब क्या है? जब हम झूठ बोलेंगे या किसी के दिल दुखाएंगे या किसी का नुकसान करेंगे तो वो हमारे दिल में गम पैदा करता है। We might not have committed sin like David, and we might have committed some sin which brings sorrow in our lives. दावीद की तरह हम शायद गुनाह नहीं किए हैं, लेकिन हमने भी शायद कुछ गुनाह कर चुके हैं जो हमारे दिल में गम पैदा करता है। Yeah, so when the word of God speaks to us about our fallen condition, sinful condition, and we must confess before. तो इस तरीके से जब खुदा का कलाम हमें बताता है हम कहाँ गिर गए हैं, जहाँ गिर गए हैं, हमारी गिरी हुई हालत खुदा जब हमें याद दिलाता है, हमें उसे कबूल करना है। Psalm 51, मज़ामिर की किताब David he cried. 51 में हम देखते हैं दावीद पुकारता है। He says, "Have mercy upon me, O God, according to the loving kindness." आयत नंबर 1 है, खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर। He is praying, Lord, blot out my transgression.
transgression. वो कहता है ऐ खुदा मेरे गुनाहों को मिटा दे। Verse 2 he says, wash me thoroughly from any iniquity. इसीलिए वो कहता है आयत नंबर 2 में कि मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। Again he says, cleanse me from my sin. और आयत नंबर 3 में वो कहता है कि मेरे गुनाह से मुझे साफ कर। Then verse 7, और आयत नंबर 7 में purge me with hyssop. वो कहता है कि मुझे हिस्सोप से मुझे धो ले। Same verse again he says, wash me. और बाद में उसी आयत में वो कहता है मुझे धो, I shall be whiter than snow. ताकि मैं बर्फ से ज्यादा सफेद बन जाऊं। And verse 9, और आयत नंबर 9 में कहता blot है out all my iniquities. वो कहता है मेरे सारे गुनाहों को मिटा दे। Going on confessing, seeking the Lord to forgive him. वो हमेशा अपने गुनाहों का इकरार करता है, खुदा से वो पूछते रहता है कि मेरे गुनाहों को मुआफ कर। He's telling, Lord, create a clean heart in me. और खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर करके बोलता है। Verse 10, आयत नंबर 10 create in me a clean heart, O Lord, renew the right spirit within me. ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। He says, cast me not away from thy presence, take not thy Holy Spirit from me. वो कहता है मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। When we commit sin, the Holy Spirit is grieved. जब हम गुनाह करते हैं तो रूहुल कुद्स जो है वो बहुत गम पाता है। He says, वो कहता है Lord, restore me, verse 12, restore unto me the joy of thy salvation, uphold me with a free spirit. वो कहता है आयत नंबर 12 में अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर और मुस्तईद रूह से मुझे संभाल। When we commit sin, we lose the joy of the Lord. जब हम गुनाह करेंगे तो हम हमारे खुदावन में जो हमारी खुशी है उसे खो बैठेंगे। We won't lose the salvation, हम नजात को खो नहीं बैठेंगे, but the joy we will lose. लेकिन नजात की खुशी जो है वो खो देंगे। Then when we confess, तब फिर से जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे and the Lord will forgive us, then again the joy will be restored. हाँ, जब हम फिर से हम गुनाहों का इकरार करते हैं तब खुदा हमारे गुनाहों को मुआफ करेगा और फिर से वो नजात की शादमानी बहाल की जाएगी। Strong man lived for the Lord and defeated Goliath, and now he fallen in sin. वो तो बहुत जोरावर सूरमा जैसा दावीद सामने जाकर गुलियात को, वो देव का मत इंसान को मार गिराया था, लेकिन अब वो गुनाह में गिर गया। So there may be a chance in our lives to fall. इसी तरह हमारी जिंदगी में भी कुछ कांटे हो सकते हैं जिनकी वजह से हम भी गिर सकते हैं। Perhaps we might have fallen. शायद हम गिर चुके हैं। May not be this sin, yes, some other sin you might have fallen. शायद इस गुनाह में नहीं, किसी और गुनाह में शायद आप गिर चुके हैं। Some defilement brought in our lives. शायद हमारी जिंदगी में किसी तरह की कुछ नापाकी आ चुकी है। Sometimes you might have used your mobiles seeing dirty things. शायद आपने अपने मोबाइल में कुछ गंदी चीजें देखी हैं। Or you might have conversed with somebody else, bad conversation. या किसी और से आपने गंदे रवैये से बातें की हैं। These are sin. ये सारे इसके सारे गुनाह हैं। It's a lie, it's a sin. ये वो झूठ है, गुनाह है। So you grieve others, that's a sin. अगर दूसरों को ठेस पहुंचाएंगे तो वो गुनाह होता है। You take something which is not belong to you, that is sin. अगर दूसरों से कुछ ले लेंगे जो आपका नहीं होता बिन बताए तो वो गुनाह होता है। These all bring sorrow in our lives. ये सारी चीजें जो हैं हमारे अंदर गम पैदा करती हैं। Joy of the salvation, joy of the Lord will go away. उस वक्त क्या होता है, नजात की शादमानी, खुदाबंद में जो शादमानी है वो हम खो बैठेंगे। So when we read God's word, when we hear God's word, the word of God will speak to us. इसीलिए जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं और जब खुदा का कलाम का मुताला करते हैं तो वो हमसे गुफ्तगू करने लगेगा। How that Nathan the prophet came to him and to David and spoke to him. So also God speaks to us individually or collectively. जैसे उस दिन खुदा ने नातान नबी को भेजा था और नातान नबी आकर दावीद बादशाह से बातें करके उसका गुनाह का एहसास दिलाया था, इसी तरह खुदा हमसे भी गुफ्तगू करेगा, तरह तरह तरीकों से हमसे भी बातें करेगा। He is a merciful God. क्योंकि वो रहमदिल खुदा है। He will not let us allow to go roam as we like. वो ये ऐसा नहीं होने देगा कि हम अपनी मनमानी के मुताबिक बाहर चल के फिरते जाएं। He wants to restore us. वो हमें फिर अपनी राहों में बहाल करना चाहता है। That's what the Lord will never leave his people. इसीलिए खुदावंद अपने लोगों
लोगों को कभी छोड़ता नहीं है। He speaks to us through His word. वो अपने कलाम के जरिए हमसे हमेशा वो बातें करते रहता है, We may be brought back, we may be restored. ताकि आप फिर वापस आ जाएं, ताकि आप फिर बहाल हो जाएं। This world that is full of sin. इस दुनिया में तो अगर हम देखें तो बहुत गुनाह से ये दुनिया भरी है। Our body prone to sin. हमारा जिस्म जो है, ये जिस्म भी गुनाह में पड़ सकता है। Apostle Paul, he says, I want to do good, I'm unable to do good. इसीलिए पौलुस रसूल ने भी ये कहा था कि मैं तो भलाई करना चाहता हूँ, नेकी करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करना मुझ में नहीं है। The sin which is in me is not allowing me to do good. क्योंकि जो गुनाह मुझ में बसता है, मुझ में है, वो गुनाह मुझे नेकी करने के लिए वो छोड़ता नहीं है, करने नहीं देता। That's what we must be all time alert. इसीलिए हमेशा हमें होशियार रहना है। Commit our ways unto the Lord. हमारी राहें खुदावंद के सुपुर्द करने Rest हैं, in Him. Rest in Him. उसमें आस रखना है Wait patiently. और तहम्मुल से मुंतजिर रहना है। Lord will do things in His own ways. तब खुदा क्या करेगा? अपनी मर्जी के मुताबिक अपने काम करते जाएगा। If you have gone wrong, अगर आप कहीं गुमशुदा हो चुके हैं, any defilement in our life, अगर आपकी जिंदगी में कहीं नापाकी आ चुकी है, tell the Lord. खुदावन से कहना, Like David, and we must confess our failure. दावीद की तरह अपने गुनाहों को इकरार हमें करना है। Tell Him, Lord, such and such area I failed. खुदा से कहना, ए खुदा, मैं इस जगह में, इस फला जगह में मैं गिर चुका हूँ। Oh Lord, forgive me. ए मेरे खुदा, मुझे माफ करना, Help me, wash me and cleanse me. मुझे माफ करना, मुझे आपके खून में धो करने को पाक करना। David was restored. दावीद को खुदा ने बहाल किया He did great things for the Lord. और खुदावंद के लिए उसने बड़े काम किए। So God want to bless us when we go closer to Him. इसी तरह खुदा भी चाहता है कि जब हम उसके करीब जाते हैं, वो चाहता है कि वो हमें बरकत दें। Yeah, please turn with me to 1 Corinthians chapter 11 मेरे साथ आप पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 15 देखें, and verse 28. 11 देखें और आयत नंबर 28। Yeah, but let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. 11 की 28। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। So we have to examine ourselves before take part in the Lord's तो table. हमें क्या करना है? खुदावंद की इस मेज में हाथ डालने से पहले अपने आप को जांचना है, परखना है। Our Lord is holy. हमारा खुदा जो है वो पाक है। Jesus Christ, our Lord, upon this earth, though He lived like us, there was no sin in Him. हमारे खुदावंद यीशुआ इस जमीन पर हमारी तरह इंसान बनकर जीते रहे, लेकिन उनमें गुनाह नहीं था। He asked everyone, "Is there, do you find any sin in me?" उन्होंने लोगों से सवाल किया और पूछा कि क्या आप लोग मुझ में किसी भी तरह का गुनाह पकड़ सकते हैं क्या? Nobody. किसी ने कुछ नहीं पकड़ा। Such a holy life He lived. इतनी पाक जिंदगी उन्होंने बिताई। He wants us to live that life. वो चाहते हैं कि हम भी उस तरह की जिंदगी जिएं। Yeah, we cannot do हम of our own. तो हमारे बलबूते पर वैसा नहीं कर सकते हैं, With God we can do. लेकिन हमारे खुदा के साथ रहते हुए वो हम कर सकते हैं। Paul, he says, पौलुस रसूल ने I फरमाया, can do all things through Christ who strengtheneth me. मैं सब कुछ मेरे खुदावंद यीशुआ में कर सकता हूँ जो मुझे ताकत बख्शता है। Through Him I live holy life. मेरे खुदावंद के जरिए से मैं पाक जिंदगी जीता हूँ। Through Him I live victorious life. खुदावंद यीशुआ में फतेहयाबी की जिंदगी जीता हूँ। Yeah, since He won victory and we can win victory in Him. क्योंकि खुदावंद यीशुआ ने सलीब पर सब कुछ जीत लिया, हम भी खुदावंद यीशुआ में सब कुछ जीत सकते हैं। Yeah, we pray, Lord, make me victorious. इसीलिए हमें दुआ मांगनी है और कहना है कि ऐ मेरे खुदावंद मुझे भी फतेहमंद बना। Yeah, we must depend on God. हमें खुदावंद पर तकिया करना है। Yeah, please turn to Psalm 37. देखें फिर से वापस साम्स 37 पे आएंगे। And the four things we have seen, we will recollect, then take part in the Lord's table. और एक बार वो 4 बातें हम दोहरा कर खुदावंद की इस मेज में हाथ डालेंगे। Yeah, trust in the Lord. पहली बात, खुदावंद पर भरोसा रख। Secondly, delight thyself in the Lord. दूसरी बात, खुदावंद में मसरूर रह। Yeah, thirdly, commit the ways unto the Lord. तीसरी बात, खुदावंद को अपनी राहें सौंप दे। Commit thy works unto the Lord. अपने काम खुदावंद के सुपुर्द कर। Commit everything unto the Lord. सब कुछ खुदावंद का सुपुर्द कर। Yeah, fourthly, चौथी बात, rest in the Lord. खुदावंद में मुतमईन रह Wait patiently unto Him. और सब्र से उसकी आस रख। Then He will
bless us, He will take care of us. तब वो हमें संभालेगा और हमारी हिफाजत वो करेगा। When David sinned, he confessed his sin. जब दावीद ने गुनाह किया तो अपने गुनाहों को दावीद ने इकरार कर लिया। So also we must confess our failures and our sin before God. इसी तरह हमें भी अपने गुनाहों को और हमारी कमजोरियों को और जहां हम गिर जाते हैं सब कुछ खुदावंद के सामने आकर हमें इकरार करना है। The Lord will forgive us and He will restore us. तब खुदा क्या करेगा? हमें मुआफ करेगा और हमें फिर से बहाल करेगा। May the Lord give us grace to follow His word. अपने कलाम की पैरवी करने का रहम खुदावंद हम सब पर अता फरमाए।